Okay, very good afternoon to all, and assalamu alaikum and namaste. And today I am going to start your unit 1, and that is polymer part second. Unit 1 part second, that is part B, polymer. Or in this unit 1, that is polymer, in the last turn we have studied about some important terms related to polymers, that is what is polymer, polymerization, monomers, and also discuss in the last term about the classification of polymers, different types of polymer on the basis of source of availability and on the basis of structure and the basis of mode of polymerization, and also in the last on the basis of molecular forces, elastomer, fiber, thermoplastic, and thermostatic. And today, in today's class, we'll discuss about the properties, preparations, and uses of some important polymers. Okay, discuss about today's in class. Discuss some important polymers. Okay, their preparations, properties, and uses. Okay, so now I am going to share the screen for you. Okay, preparation, properties, and uses of some important polymers: polythene, PVC, Teflon, polystyrene, and bakelite. These are the some important polymers in your syllabus: polythene, PVC, Teflon, polystyrene, and bakelite. Okay. First of all, discuss about the polythene. Polythene basically a polymer. Polythene basically a polymer, and the monomer of polythene is ethene. You know that. The last one we will discuss. We were discussing about the polythene. Now, देखिए first one is polythene. अब हम पॉलिथीन के बारे में आपको बताएंगे, पॉलिथीन क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसके यूजेस क्या है. ओके, so polythene is one of the important polymer. Okay, and the monomer of polythene is ethene, and it is now preparation. It is obtained by polymerization of ethene. Okay, it is obtained by polymerization of ethene. Okay, it is obtained by polymerization of ethene. Okay, it is manufactured in large quantities and is the most common polymer which you find almost everywhere. Okay, this is the most common polymer which you find almost everywhere. Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, बहुत ही कॉमन पॉलीमर है. अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको ये मिल जाएगा, जिसे आप कहते हैं पॉलीमर. हेलो सर. यस, टेल मी. हेलो सर. यस सर अभी सर नेटवर्क इशू हो गया था सर. सर जो आपने बताया सर समझ नहीं आया सर. चलिए प्लीज माइक बंद करिए. पहले मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ. देखिए किसी बच्चे का माइक नहीं हो रहा था, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ. देखिए इन टुडेस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स. फॉर एग्जांपल पॉलीथिन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन एंड बेकेलाइट. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. इनकी प्रिपरेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं एंड यूजेस क्या हैं, ये हम आपको डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट है आपके पास पॉलीथिन. पॉलीथिन इट इज फर्स्ट वन प्रिपरेशन. ओके, इसको हम थ्री टर्म्स में हम देखेंगे. पॉलीथिन को थ्री रेस्पेक्ट में देखेंगे: प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. तो सबसे पहले हमारा आता है प्रिपरेशन. इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन, एथीन और इथाइलिन. It is manufactured in large quantities and is the most common polymer which you find almost everywhere. Okay, ये आपका जो पॉलीथिन है ये आपका इथीन से बनाया जाता है. When polymerization of ethene, मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कल की क्लास में, when polymerization of ethene and then form polythene. So polythene is a polymer, ethene is a monomer. अब आपसे कोई क्वेश्चन रेज करेगा मोनोमर, इथीन इज अ मोनोमर और पॉलीमर, तो आप कहेंगे इथीन इज अ मोनोमर. और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि पॉलीथिन इज अ पॉलीमर और मोनोमर, तो आप कहेंगे पॉलीमर. ओके, पॉलीथिन एक पॉलीमर है और इथीन एक मोनोमर है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जाएगा व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन. व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन, इथीन का पॉलीमर क्या है, तो आप कहेंगे पॉलीथिन. नेक्स्ट आएगा व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथिन. What is the monomer of polythene, and then answer is ethene. Okay, सिंपल लैंग्वेज में भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ. इथीन एक मोनोमर है, पॉलीथिन एक पॉलीमर है. इथीन का पॉलीमर पॉलीथिन है
और पॉलिथीन का मोनोमर इथीन है। ओके, और आपका जो पॉलिथीन है इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। जब इथीन का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलिथीन बनता है, और इट इज मोस्ट कॉमन पॉलीमर, ओके, विच यू फाइंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह आपको ये मिल जाए। ओके, एंड नाउ प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज अ रिजिड, waxy एंड वाइट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। बहुत ही देखिए क्लैरिटी होती है इसके अंदर। ओके, ट्रांसलूसेंट भी होता है आपका, वैक्सी मतलब कलर लगता है आपको सा है, व्हाइट है, एंड इट आल्सो रिजिड। इट इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं हो सकती। गुड इंसुलेटर, नॉट कंडक्टर। आई एम टेलिंग अबाउट इंसुलेटर। ओके, एंड देन इट क्रिस्टलाइजेस वेरी इजीली, आसानी से क्रिस्टल बना सकता है। ओके, इट क्रिस्टलाइजेस वेरी इजीली, जब मेल्ट करते हैं तो क्रिस्टल बन जाते हैं। इट क्रिस्टलाइजेस वेरी इजीली। एंड नाउ यूजेस, polythene is used for making pipes, toys, buckets, dustbins, bottles, insulator, packaging films, and carry bags. Okay, these are the some important uses of polythene. Okay, you are familiar with these uses. Polythene is used for making pipes, toys, buckets, dustbins, bottles, insulators, packing films, and carry bags. अब बताइए कितनी मैंने सिंपल लैंग्वेज आपके लिए रखी, बताइए पॉलिथीन में क्या मुश्किल है, ये बता दी मुझे आप। यस सर, समझ में आ गया सर, आया समझ में सब। बेटा हेलो समझ में सर, तो सर वो आएगा। बता दिए व्हेन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इज कॉल्ड। जी सर व्हेन हाँ। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इज कॉल्ड। अरे देखो एक बात सुनो, व्हेन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन देन फॉर्म पॉलिथीन, ये था पॉलीथीन। हाँ, व्हेन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन देन फॉर्म पॉलिथीन, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पॉलीमर को बनाते हैं मोनोमर से, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अभी देखिए पॉलीमर को बनाओगे मोनोमर से, मोनोमर से पॉलीमर बनेगा, तो इसी को तो पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सर ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्या होता है सर? जी ट्रांसल्यूसेंट सर। बहुत स्लो आवाज आ रही है डियर आप। ट्रांसमिशन पूछ रहा था। ट्रांसपेरेंट मोनोमर बनाया जा सकता है। ट्रांसलूसेंट लाइट पास होती है। लाइट ऐसा जिसमें क्लैरिटी होती है उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। बस अब आप आगे सुनिए नेक्स्ट। इसका देखिए पॉलिथीन हो गया बेटा। देखिए आपको 5 पढ़ाना है, 1 बाय 1 चलने दीजिए स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब देखिए सेकंड आइए। सेकंड है आपका पीवीसी। ओके, पीवीसी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ओके, इन दिस कैटेगरी ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स, पॉलीमर की कैटेगरी में हम चल रहे हैं, तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉलीमर दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ओके, द मोनोमर यूनिट्स आर विनाइल क्लोराइड। ओके, द मोनोमर यूनिट्स आर विनाइल क्लोराइड्स। इसका जो मोनोमर है वो आपका है विनाइल क्लोराइड। PVC is prepared by heating vinyl chlorides in an inert solvent in the presence of dibenzoyl peroxide। देखिए अब एक बात सुनिए, यहाँ एरो के ऊपर आप लिख सकते हैं, एरो है यहाँ, एरो के ऊपर लिख सकते हैं डाइबेंजोइल पेरोक्साइड। डाइबेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला मैंने उसमें भी दिया था, मार्कोनिया फ्लूइड में, फार्मूला उसमें दिया था एंटी मार्कोनिया फ्लूइड में, डाइबेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला वहां लिखा था मैंने। तो इसकी प्रेजेंस में देखिए मैं आपको बताऊं क्या है, और अगर कुछ भी ना करना चाहें आप तो और सिंपल कर सकते हैं। PVC is formed by polymerization of vinyl chloride। जब हम विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो PVC बन जाता है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बता दिया कि डॉट डॉट जो लगे ना, इसका मतलब क्या, बॉन्ड है बेटा। अच्छा, ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको, बॉन्ड है, इसको कुछ और मत समझिएगा, बॉन्ड है ये। डॉट डॉट का मतलब बॉन्ड है। अच्छा, ये बॉन्ड लगा हुआ है, पूरा बॉन्ड इस तरीके से लगा होता है। कार्बन आगे देखिए बॉन्ड लगा है, कहीं भी जा सकता है। तो देखिए मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। देखिए when heating of vinyl chloride, when heating of vinyl chloride in the presence of benzoyl peroxide and then form PVC। तो और सिंपल वर्ड्स में कह दीजिए when polymerization of vinyl chlorides, when polymerization of vinyl chloride and then form PVC। ओके, तो अब आपसे पूछा जाएगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC एक पॉलीमर या मोनोमर, ये बताइए। पॉलीमर। विनाइल क्लोराइड्स क्या है? वेरी नाइस।
Okay, okay, very nice. Next roll number, next roll number 275. 275 roll number, mic on करिए अपना 275. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I am audible. आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes. और हम नजर आ रहे हैं आपको? जी सर. हाँ, चलिए ये बताइए बेटा आप 275. ये आपसे पूछ रहे हैं, ये बताइए विनाइल क्लोराइड. विनाइल क्लोराइड इज अ मोनोमर और पॉलीमर? मोनोमर. वेरी नाइस, थैंक यू. अब पीवीसी क्या है? पॉलीमर और मोनोमर? पॉलीमर. पॉलीमर. वेरी गुड, वेरी गुड. अब ये बताइए व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड? व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड? पॉलीमर पीवीसी. पीवीसी. यस, वेरी आई अप्रिशिएट यू. नेक्स्ट बताइए व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पीवीसी? विनाइल क्लोराइड. यस, थैंक यू, वेल डन. देखिए यही देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, क्या मोनोमर बताइए, उसका पॉलीमर बताइए, बस. अब देखिए हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं. देखिए प्रॉपर्टीज को मैंने बहुत शॉर्ट में दिखाया बेटा, क्योंकि हमारा यहाँ मकसद ये नहीं है कि हम आपको प्रेशराइज करें या आप पे वर्डन ज्यादा दें. हमारा मकसद ये है कि आपको सिंपल लैंग्वेज दें और आपकी समझ में आना चाहिए क्लास में क्या हो रहा है. ओके, क्योंकि आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड आल्सो, तो ये हमें देखना है कि लैंग्वेज को हम सिंपल रखें इसी. अब आप सुनिए प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं. देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए मैं बात कर रहा हूँ. देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया. वैसे कहते हैं इट इज अ वाइट ब्रिटल सॉलिड. वाइट ब्रिटल मतलब वाइट भी होता है और चमकीला भी होता है. इट इज वाइट ब्रिटल सॉलिड. इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल. अल्कोहल में ये डिसॉल्व नहीं होता है. अगला देखिए आप, इट इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट इज सॉल्युबल इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन. ये सॉल्वेंट होता है बेटा, ये डायरेक्ट मार्केट में आता है सॉल्वेंट के नाम से. जैसे अल्कोहल आता है वैसे ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये रिसर्च वगैरह में यूज होता है. टेट्राहाइड्रो, इसे कहते हैं शॉर्ट में THF. मैं आपको बताऊं इसका, देखिए मार्केट में जाएंगे THF के नाम से आता है. देखिए आप THF हायर स्टडी में मिलेगा, रिसर्च वगैरह में भी नहीं. रिसर्च वगैरह में स्टूडेंट यूज करते हैं, THF कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन. ओके, और उसके बाद देखिए आप, ये ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें कोई हार्ड चीज सॉल्युबल हो जाती है. ओके, जैसे प्लास्टिक उसके जैसे है आपकी PVC वगैरह सॉल्युबल हो जाती है. हाई हार्डनेस, देखिए ये जो है इसकी हार्डनेस बहुत हाई होती है, हाई हार्डनेस. अगला देखिए आप, हीट स्टेबिलिटी ऑफ PVC इज वेरी पुअर. व्हेन द टेंपरेचर रीचेस 140 डिग्री सेल्सियस PVC स्टार्ट टू डिकम्पोज. भाई आपने घर में फ्लोरिंग करी है, ठीक है, आप आग लगा दें, हो सकता है इतने आसानी से. देखिए आप वहां पर लोग सिगरेट पीते हैं, कभी कोई ड्राइंग रूम में किसी मतलब कहीं पर भी है, तो कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसने फेंक दिया, तो नहीं हो सकता ना भी जले. लेकिन अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, अगर कुछ ही जल रही है, अगर ये टेम्परेचर आ जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस, तब डिकम्पोज कर जाएगा, तब हो सकता है खराब हो जाए आपका पूरी शीट. समझ रहे हैं नहीं? तो जो हीट स्टेबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है. हीट स्टेबिलिटी तब स्ट्रांग होती जब ये कहते हैं कि 500 है, 1000 है, 2000 टेम्परेचर तक भी वैसे ही कोई चेंज नहीं आ रहा है शीट में, वैसी रह रही है. ये तो 140 पे ही आपका, 140 कोई ज्यादा टेम्परेचर थोड़ी होता है. 140 पे तो फौरन आपको डिकम्पोज कर रहा है. ओके, समझ रहे हैं नहीं? तो जैसे कोई मान ली इंडस्ट्री वगैरह है, वहां पर बहुत थर्मल प्लांट लगा हुआ है, हीट ट्रीटमेंट बहुत हाई है, तो वहाँ टेम्परेचर 2000 5000 हो जाएगा, तो वहां अगर शीट बिछा दी तो फौरन पिघल जाएगी. समझ रहे हैं क्या कहा मैंने आपसे? बताइए पहले. तो फिर सर इसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज क्यों करते हैं सर? जो वायर होते हैं तो उसमें PVC लगी होती है, फिर उसमें इलेक्ट्रिकल वायर में यूज करते हैं. आपको मालूम है, जैसे तो आपको करंट ना लगे तो उसमें कोई टेम्परेचर थोड़ी बढ़ रहा है. नहीं सर, कभी कभार शॉर्ट सर्किट होता है तो सर नहीं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. शॉर्ट सर्किट का सर हीट. एक बात बताइए, अगर होता है तो टेम्परेचर देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक दिन मैं अपने घर में भी देखा था मैंने, तो रात में हमने देखा अचानक एसी बंद हो गया. हमारा समझ नहीं आया क्यों बंद हो गया एसी. तो बाहर जाके जो उसका बोर्ड लगाया वो देखा, तो जो MC लगी होती है उसके अंदर डिफरेंट तरीके के स्विच लगे होते हैं. उसको जब चेक करा था वो जल गया था, पता है. तो मैंने इलेक्ट्रिशियन उसको बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को, तो उसने बताया कि इसमें पता है टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जो ये आपका जो PVC उसके पास जो कोटिंग होती है वो मेल्ट कर जाता है टेम्परेचर जब, तो वो मेल्ट कर गया, इसलिए वो स्पार्किंग हुई उसके अंदर, वायर के अंदर, इसलिए वो जल गया था. मैंने खुद देखा था अभी कुछ दिन पहले की बात अपने घर पे. तो क्या होता है, देखिए पोर स्टेबिलिटी है. एक बात बताइए, हो सकता है वायर में हीटिंग हो जाए या स्पार्किंग हो जाए, तो जो आपकी PVC वो तो जल जाएगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया. हाँ, अगर 140, देखिए 140 से कम टेम्परेचर रहेगा तो नहीं पिघलेगा, तो चलता रहेगा, आपका वायर खराब नहीं होगा. लेकिन हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो 100% आप समझ लीजिए कि आप वो पिघल जाएगा और आग भी लग सकती है, स्पार्किंग हो सकती है. टेम्परेचर अगर बढ़ गया, टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हीट बढ़ेगी. समझ गए? यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं. देखिए आप, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ PVC रेनकोट्स. देखिए रेनकोट्स आते हैं इसके, हैंडबैग्स आते हैं, विनाइल फ्लोरिंग होती है, PVC पाइप आते हैं सर.
हाँ, अरे तो कुछ भी लिख लो, मैं बता रहा, देखिए इट इज यूज फॉर मैनी, मैं तो ऐसे दे रहा हूँ जो आप खुद ही याद कर लें, आप देखिए कोई भी याद कर लेगा। कितनी सिंपल लैंग्वेज रखी, देखिए आप क्यों रखी मालूम है आपको, मैं चाहता पूरी लैंग्वेज लिखता आराम से। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर, आप शॉर्ट में लिख दिया, देखिए आप, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर आप पीवीसी रेनकोट्स, हैंडबैग्स, विनाइल फ्लोरिंग, घर में फ्लोरिंग करते हैं लोग, लेदर क्लॉथ्स एंड टॉयज एंड पाइप्स, बहुत सारी चीजें बन रही है पीवीसी की, तो दुनिया की चीजें बन रही है आजकल, देख रहे हैं आप, पाइप्स आ रहे हैं, सबमर्सिबल कराते हैं जो अंदर पाइप जाते हैं उसके अंदर वो सब पीवीसी के पाइप होते हैं, देखा नहीं है आपने? जी सर। विनाइल हाँ। क्या होता है? जी जी, ये फ्लोरिंग क्या होता है? है, विनाइल फ्लोरिंग? अरे फ्लोरिंग नहीं समझते हो, कैसी बात करते हो बेटा, फ्लोरिंग नहीं समझे, फर्श नहीं सर। बिछाना। हाँ, भाई घरों में कभी कभी ऐसा होता है, कोई पत्थर नहीं लगवा पा रहा है, टाइल्स नहीं लगवा रहा है, तो उसने क्या करी, फ्लोरिंग कर दी पीवीसी, समझ गए? कभी जी फ्लोरिंग सर। कर लेते हैं, हाँ, यस शुभ यस। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आ गया टेफ्लॉन, देखिए आप टेफ्लॉन है, चलिए आप टेफ्लॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये रोल नंबर देखिए आप, ये है रोल नंबर 310, 310 पढ़ी टेफ्लॉन, जी सर। क्या लिखा हुआ है इसके टेफ्लॉन के बारे में, बड़ा ही प्रिपरेशन में क्या लिखा हुआ है? Sir, the proper preparation is, sir, इसकी the monomer unit is terafluoroethylene molecule. Teflon is prepared by heating tetrafluoroethylene under pressure in the presence of ammonium peroxosulfate. हाँ, और सर इसकी रिएक्शन है CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसमें कैटलिस्ट सर हीट के साथ साथ हम इसमें अमोनियम उसकी प्रेजेंस में होता है सर, अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट से। ओके, अब देखिए और सर इसके हाँ दोबारा से पढ़ी, मैंने इसको चेंज किया, दोबारा से पढ़ो। सर द मोनोमर यूनिट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलीन मॉलिक्यूल. Teflon is prepared by heating tetrafluoroethylene under pressure in the presence of ammonium peroxosulfate. हाँ, देखिए ऐसा है, अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट। अब एक बात सुनिए, जो तुमने बात की, मोहित नाम है ना तुम्हारा बेटा? जी सर। देखो मोहित, टेफ्लॉन जो है, मैं आपको बताऊं, दी मोनोमर यूनिट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, और दूसरा नाम है इसका टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन क्यों कहते हैं? इथीन का तो डबल बॉन्ड है, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन। अब आपसे कोई पूछेगा टेफ्लॉन का मोनोमर बताइए, तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथीन, याद रहेगा आपको? जी सर। टेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमर है टेफ्लॉन। ये कंपटीशन में आ सकता है, बड़े कंपटीशन में। अगला सुनिए आप, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। इथाइलिन और इथीन एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे देखिए इथीन लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है? ये देखिए आप, ये टेट्राफ्लोरोइथीन लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है? टेट्राफ्लोरोइथीन, ये आप देख रहे हैं, अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम पेरोक्सोसल्फेट। अंडर मतलब हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर लिखिए आप, देखिए अंडर हाई प्रेशर, देखिए ये वन लिखिए, अंडर हाई प्रेशर, देखिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन, ओके, अंडर हाई प्रेशर एंड देन गिव टेफ्लॉन। तो देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये n क्या होता है? नंबर होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, n नंबर होता है, 2 है, 100 है, नंबर ऑफ मोनोमर्स। हाँ नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं। अब हाई प्रेशर, तो देखिए क्या, ये बॉन्ड लगा हुआ है, देखिए आप, बॉन्ड का मतलब क्या है? जुड़े हो सकते हैं, कितने भी जुड़ सकते हैं आगे मॉलिक्यूल टेट्राफ्लोरोइथीन। तो अब आपसे हम पूछेंगे कि ये बताओ कि टेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमर है और पॉलीमर है? मोनोमर है। मोनोमर है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए नेक्स्ट, तो टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमर है सर। तो पॉलीमर है, वेरी गुड, पॉलीमर है, वेरी नाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं अगला जो क्वेश्चन करेंगे हम, रोल नंबर 299 है। यस सर। हाँ 299, बट हाँ एक बात बताइए बेटा, आप क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद सर। शान मोहम्मद बेटा, ओके। ये एक बात बताइए शान मोहम्मद, कि टेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमर है या पॉलीमर? सर मोनोमर है सर। ओके, और ये बताइए टेफ्लॉन क्या है, पॉलीमर या मोनोमर? सर टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर। वेरी गुड। अब आपसे कोई कहा जाए कि व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर क्या है, क्या बताओ? सर टेफ्लॉन इज द पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। यस, वेरी नाइस। और ये कहेगा व्हाट इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन इज टेट्राफ्लोरोइथीन। अब एक बात सुनिए, देखिए आपके पास कोई बाइक, स्कूटी, कार कुछ है? यस सर, बाइक है, वेरी गुड।
ओके, अब एक बात बताइए, कब ली थी बाइक आपने? सर बहुत दिन हो गए, कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। ओके, सुनिए अब एक बात बताइए, जब बाइक आप लेते हैं तो पता है जब आप कुछ खरीदने जाएंगे तो पता है वो डिफरेंट ऑफर देते हैं कंपनी वाले कि हम आपकी टेफ्लॉन कोटिंग करा देंगे। टेफ्लॉन कोटिंग क्यों होती है? शाइनिंग के लिए होती है, जिससे आपकी बाइक, कार, स्कूटी बिल्कुल चमकती रहे, तो वो टेफ्लॉन कोटिंग कहलाती है। अब एक बात बताइए, मैं आपको बताऊं, ये 2015 की बात है, 2015। ओके, सुन रहे हैं मेरी आवाज? नहीं आप? यस सर, आज हाँ देखिए, 2015 की बात है। हाँ देखिए, 2015 की बात है। मैं यूनिवर्सिटी का जो हमारा पेट्रोल पंप है, हमारे यूनिवर्सिटी का पेट्रोल पंप है, तो वहां पर मैं, स्कूटी थी मेरे पास, तो मैं स्कूटी पेट्रोल डलवा के आ रहा था, तो पेट्रोल पंप के बाहर कुछ 2-3 लड़के बैठे थे, तो वो कह रहे हैं कि सर रुक जाइए, हम आपकी स्कूटी को वो कर दे रहे हैं, कोटिंग कर दे रहे हैं, इसको टेफ्लॉन टेफ्लॉन कोटिंग हो जाएगी और 200 या 300 रुपीज चार्जेस है, और बिल्कुल आपका 1 ईयर की गारंटी दे रहे हैं आप, और बिल्कुल चमक जाएगी आपकी। तो मैंने, अच्छा, मैंने ये बताओ टेफ्लॉन क्या होता है, ये बताओ। मैंने, आप जानते हैं टेफ्लॉन क्या होता है? तो कह रहे हैं कि नहीं सर बहुत अच्छा, एकदम शाइनिंग कर दी। मैंने, ये बताओ टेफ्लॉन होता क्या है, पहले ये बताओ। तो कह रहे हैं सर ये देखिए डिब्बा देखिए, सब रखा हुआ है हमारे पास, ये सब है मटेरियल। तो मैंने कहा ये बताओ टेफ्लॉन होता क्या है, समझ रहे हैं? नहीं, एक बेसिक क्वेश्चन था भाई। ठीक है, बेचारे उसको क्या, उसको मालूम क्या था। उसको मैंने कहा देखिए टेफ्लॉन बेटा एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है, और पॉलीमर क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं, बिग मॉलिक्यूल मैक्रो, और ये मोनोमर से बनते हैं। तो बेचारा वो बहुत वैसे हो गया फील, कह रहा है सर हम बिल्कुल पढ़े ही नहीं है सर, हमने 10th भी पास नहीं किया है। तो मैंने, कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें 200 रुपए की जगह 100 रुपए एक्स्ट्रा लो, लेकिन नॉलेज रखो कि कोई पूछेगा कल को आपसे टेफ्लॉन का, तो बता दो उसके बारे में, तभी तो आपकी मार्केट अच्छी वैल्यू होगी। अब एक बात बताओ, तुम अभी मान लो जैसे मैं एक बच्चे से पूछ रहा था इससे, अब किसी से भी पूछ रहा हूँ मैं, अब आपने क्या किया, आपने कार, स्कूटी, बाइक, या आपने टेफ्लॉन कोटिंग करा ली, अरे आप कोटिंग करा के वो चले आए, और आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, और आपको ये नहीं मालूम टेफ्लॉन है क्या। ये बड़ी, बस ये मालूम है कि खूबसूरती के लिए, शाइनिंग के लिए, बस इसी की कौन सी बात हुई। आपको पता होना चाहिए, जब आप साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, और ये भी पता है आपको कैसे बनता है ये, तो इतनी नॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे आप पहले। सर होनी चाहिए। जी सर। जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि हवा में बात नहीं होना चाहिए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप। यस सर, बेसिक अब एक बात नॉलेज है। बताइए, देखिए अब पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब बाइक पे और इस पे जो है, बाइक है आपका, स्कूटी है, कार है, जब उस पे इसकी कोटिंग हो जाती है, जानते हैं कोटिंग होने के बाद बहुत शाइनिंग आ जाती है, और पता है जैसे लाइट है, हीट है, और ये मान ली कोई केमिकल भी गिर जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं गिर पड़ता है, कोटिंग वैसी ही रहती है। तो इट रेजिस्ट्स टू हीट, लाइट एंड केमिकल सब्सटेंसेस, वो मैं प्रॉपर्टी में बताऊंगा आप। देखिए प्रॉपर्टीज आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर मेरा एक एक बार सवाल था सर। खराब होता है क्या? हैं? सर वो जो गाड़ी, सर वो बाइक वगैरह की जो सर पॉलिश आती है, उसमें भी सर टेफ्लॉन आता है कि सर? बेटा देखिए, पॉलिश अलग अलग तरीके की होती है। टेफ्लॉन जो कोटिंग होती है वो बहुत ही स्टेबल होती है, ठीक है, अलग से नाम से आता है टेफ्लॉन के नाम से। और पॉलिश तो सिंपल तरीके की होती है, वो तो ऐसी होती है जैसे शैम्पू टाइप का होता है, इस तरीके की होती है। पॉलिश तो अलग चीज है। टेफ्लॉन कोटिंग भैया पता है, 2-3 साल तक इसकी शाइनिंग रहती है क्या? मैं बताऊं आपको, टेफ्लॉन कोटिंग में क्या होता है, पहले तो वो आपकी सफाई करेगा बाइक, उसके बाद एक रबिंग करेगा, उसके बाद एक लिक्विड लगाएगा, उसके बाद टेफ्लॉन कोटिंग देगा लास्ट में जाके, डिफरेंट लेयर चढ़ाने के बाद। ओके, कहाँ होती है सर ये हर जगह मिल जाएगी, कहीं भी करा लीजिए आप, किसी शोरूम में वहां चले आइए आप, सर फ्राइंग पैन पे लिखा है। टेफ्लॉन कोटिंग कहीं भी है करा सर लीजिए। यूनिवर्सिटी का पेट्रोल पंप। नहीं, पहले यूनिवर्सिटी वाले था, अब नहीं है, बंद कर दिया है। पहले था, लोग पता नहीं क्या लोग नहीं करा रहे थे इसलिए बंद कर दिया। टेफ्लॉन हर जगह होती है भैया, जहाँ आप कार वगैरह धुलवाएंगे तो अगर हो सकता है बहुत जगह बैठे रहते हैं। अरे आप नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में तो जो रहते हैं उन्हें बता दूं, नुमाइश ग्राउंड के पास चले आइए और टेफ्लॉन कोटिंग कर देंगे, ठीक है। यस सर, होती है, बहुत सारी जगह होती है। बहुत सारी जगह होती है, वो कोई सिंपल बात यस, नुमाइश फेमस है सर, है। नुमाइश फेमस देखिए बेटा, चलिए प्रॉपर्टीज सुनिए, फेमस जगह है। आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए आप टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज में आइए। सर टेफ्लॉन, टेफलॉन का टेप भी आता है सर। सर मुझे ऐसे मालूम हुआ सर, मेरी जो शॉप है सर फादर की, वहां पे एक टेफलॉन टेप के नाम से एक टेप आता है सर, जो कि बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल, वगैरह क्यों में नहीं भाई, टेप भी आ सकता है, मटेरियल भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं टेफ्लॉन के नाम से। टेक्नोलॉजी है भाई, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कल को आपको टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है भाई। एक चीज को कई फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है नहीं। जैसे पहले पता है मिल्क था, तो मिल्क क्या था, पहले आपको एनिमल से मिलता था, और आज के डेट में आपको पाउडर भी मिल रहा है, टेट्रा पैक भी मिल रहा है, और वैसा भी पैक मिल रहा है, हर तरीके से मार्केट में मिल रहा है, कैसा भी ले लीजिए। अब पहले मान लीजिए आपके घर क्या था,
40 ईयर्स बैक जाइए, आप सिर्फ क्या होता था, आपके पास पोटैटो था, आप पोटैटो कितनी फॉर्म कर दी बताइए, डिफरेंट चिप्स कर दी, ये बना दिया वो बना दिया। तो एक चीज कई फॉर्म में बनाया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा बेटा ये टेक्नोलॉजी है, आप अपना कौन सी टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं। तो अब जरा प्रॉपर्टी सुनिए बेटा। टेफ्लॉन इज अ वेरी टफ मटेरियल। देखिए होना चाहिए टफ, टफ होगा तभी तो शाइनिंग आएगी, ऐसा थोड़ी लूज हो जाएगा फौरन पिघल जाएगा। टेफ्लॉन इज अ वेरी टफ मटेरियल एंड इट इज, देखिए आप, एंड इट इज, देखिए आप, एंड इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स हीट एंड एक्शन ऑफ एसिड और बेस। देखिए हीट है और मैं आपको बताऊं लाइट भी होती है। देखिए लाइट्स के भी इतना आसानी से कोई असर नहीं होता। देखिए हीट, लाइट एंड एक्शन ऑफ एसिड्स। देखिए एंड एक्शन ऑफ, देखिए लिख दिया मैंने, ये जरा एक बार जोड़ देना अपने जो नोट्स दिए मैंने आपको, उसमें एक अच्छी जुड़ती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए टेफ्लॉन इज वेरी टफ मटेरियल एंड इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स हीट, लाइट एंड एक्शन ऑफ एसिड और बेस। एक अच्छी बात तो पता है क्या होती है, कोटिंग में कर देते हैं, अगर हीट उसके ऊपर पड़ेगी तो आसानी से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लाइट का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और एसिड और बेस भी अगर थोड़ा सा उसमें कोई गिरा दे तो कोई असर नहीं होने वाला। हाँ अगर एक्सेस में गिराओगे तो नुकसान हो ही जाएगा। ठीक है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। अरे पॉलीमर तो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं, ये पॉइंट सब में लिख सकते हैं आप। पॉलीमर का तो हाई मॉलिक्यूलर मास होता ही है, कोई ऐसी बात थोड़ी। पॉलीमर क्यों होता है हाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर बनता है, बहुत सारे मोनोमर से मिलकर। इट इज हाइड्रोफोबिक, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए वेरी नाइस पॉइंट। इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। अब एक बात बताओ, हाइड्रोफोबिक का मतलब लेस अट्रैक्शन। अगर मान लीजिए अट्रैक्शन होता तो वाटर के साथ घुल जाएगा, वो जो आप कोटिंग कर रहे हैं खत्म हो जाएगी, छूट जाएगी सब। तो वाटर के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं रखता है ये, ठीक है, लेस अट्रैक्शन होता है। तो जब उसमें पानी मारेंगे आप, अगर कोटिंग कर दी तो कुछ शाइनिंग आ जाएगी ऑटोमेटिक, अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। अब देखिए आप कहाँ आप देखिए यूज तो कहीं भी कर सकते हैं। इट इज यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स, गैस्केट्स एंड आल्सो यूज फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग यूटेंसिल्स। अरे जहां चाहे वहां यूज करिए, आपका मन है। मैंने बाइक का तो बता दिया था, बाइक वाला तो अपने आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ते रहिए, पूछते रहिए। जब देखिए एक बात सुनो सर, एक आध बार पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगी कुछ। ये बताओ अब बेटा, एक आप जैसे आप, मैंने आपको समझा रहा हूँ, अब आप भी एक बार पढ़ेंगे तो मुझसे डिस्कस करेंगे मुझसे। ओके, अब एक बात सुनिए बेटा, एक मैं आपको एक चीज और समझाऊं, जरा हिंट दे रहा हूँ, जरा सुनिएगा, आगे सुनिए आप। देखिए आप ये देख रहे हैं, देखिए अगला है बूना एस, ये सिलेबस में नहीं है। एक बात सुन लीजिए, बूना एस है और एक है आपका बूना एन, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, लेकिन मैंने ये बेटा, ये दोनों रबर होते हैं। ओके, ये दोनों रबर होते हैं, लेकिन आप चाहे तो पढ़ लेना, ये देखिए उसके लिए काम आएंगे आपके बीटेक के लिए। ये दो मैंने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, बूना एस एंड बूना एन। सुन रहे हैं आप? नहीं, बताइए क्या कहा मैंने आपसे अभी। जी सर। जी सर। मैं आपको, हाँ बताइए सर। आपने सर बीटेक का नाम लिया सर, उससे सर रिलेटेड सर डिप्लोमा वाला और सर जो 12th वाला जो बीटेक का एंट्रेंस देते हैं, हाँ, तो सर उनका मतलब सेम ही होता है या डिप्लोमा वालों का अलग से आता है और 12th वालों का अलग से आता है? एक बात सुनो, डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक का टेस्ट देंगे तो आपको 11-12 का पूरा पढ़ना पड़ेगा। 11th-12th वाले जो बीटेक का एंट्रेंस देंगे वही हमारे लिए होगा सेम? बिल्कुल बेटा होगा, बीटेक का सेम कोर्स होता है 11-12। जी सर, उसी हाँ, को लेके और अगर आपका बी का टेस्ट देंगे, बी का, तो बी का वो कोर्स आएगा डिप्लोमा में पढ़ा है बस। बी का डिप्लोमा वाला आएगा। जी, क्लियर हो गई बात? सर ओके मैथ सर, फिजिक्स ठीक है। केमिस्ट्री भी सेम होगा डिप्लोमा जैसा ही, या 11-12 का होगा वो? डिप्लोमा में, डिप्लोमा का जो आपका कोर्स है यही आएगा बस डिप्लोमा में। सर डिप्लोमा में सर कितना? हेलो सर, 4th और 5th पॉइंट ये सर ये बीटेक की नहीं है बेटा? ये मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये देखिए पॉइंट नंबर 4 है बूना एस, और एक और आ रहा है देखिए बूना एन, ये दोनों पॉलीमर हैं, ये आपके एक्स्ट्रा हैं दोनों। ये आप कहें तो मैं डिलीट कर दूं और कहें तो रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए आप पढ़ लीजिएगा। सर रखा रहने सर बेटा ये मैंने एक्स्ट्रा, देखिए मैं आपको, मुझे पढ़ाना नहीं, लेकिन मैंने रख दिए, हो सकता है कोई कंपटीशन बच्चा दे रहा है तो उसकी काम आ जाएगा, तो इसमें बुराई क्या है ये बताओ। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं डिप्लोमा के, ठीक है। एक बात सुनिए, अब मैं एक बात और बता दूं, देखिए जैसे बूना एस है, एक पॉलीमर एस का यूज देखिए कहाँ होता है, आपने सुना होगा। देखिए कार टायर्स हैं, फ्लोर टाइल्स है, एडिसिव है, वायर केबल इंसुलेशन है, रबर सोल्स हैं, बेल्ट्स हैं, कुछ बनाना होता है। देखिए कार के टायर देखे नहीं, कार के, ट्रक के टायर वगैरह, वो बूना एस के बनते हैं। एक रबर है ये, ठीक है, बूना एस एक रबर है तो उससे बनते हैं। और देखिए बूना एन है, बूना एन भी है दूसरा, देखिए आप, बूना एन दूसरा पॉलीमर जो है, ये
आपका देखिए इसका क्या होता है यूज, देखिए इट इज यूज फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग्स, प्रोटेक्टिव ग्लोव्स, ये सब बनते हैं इसके। जो आपका बुना है ये रबर है, दोनों बुना है। ग्लोव्स क्या होते हैं सर? जी सर सील्स क्या होते हैं? ऑयल सील्स? ऑयल सील्स नहीं समझते हो? ऑयल सील्स नहीं मालूम है आपको? बताया आप में से किसको पता है? चलिए ऑयल सील्स क्या होता है? हम बताएं सर 25। हाँ बताओ। सर जैसे हम लोग वो सर वो कैन